Hello everyone. Today I came back with another very disturbing news. In Pakistan, teachers are involved in raping Christian girls, rather children. Unfortunately, this is happening in Pakistan, in the heart of Pakistan, right in the outskirts of Lahore, which is one of the second major city of Pakistan, quite frankly, where they are making videos in raping little girls, specifically Christian little girls, and nobody is doing anything. Even so and so that it is stated that they make young boys rape young Christian girls because this school is near a Christian locality, because mostly Christian localities are separate than the Muslim localities in Pakistan, mostly, not all of them, mostly. And these are literally poor Christian families living in the outskirts of Lahore. And the police has taken the money, i.e. bribe, from the school authorities, and they are not doing anything. This family is running from police station to police station that this action, this crime is not of this police station, and this crime is of that police station, and this crime is of that police station. They have the doctor's report of a child who is only 8 years old, child girl, whose hymen has been ruptured, and the school is proclaiming that another child which is 7 years old or 5 years old has done this action with her, which is not possible for a 5 or 7 years old child to do, to make that girl into a shock, rupture the hymen, and she's so sick and ill that she can't even move, and she is on her bed. The report proclaims from the doctor that it must be done by an adult, but because the child is underage, she cannot give birth to a baby. Hence, the rape has happened, yes. The hymen has been ruptured, yes. And probably with a very high chance that it is done by an adult, with a high probability. Secondly, they are making videos when this action is happening, and then they sell these videos. These perverts sell these videos when they rape little Christian girls, because in Pakistan, when you are poor, you can't do a lot. Now, let alone you are a Christian who is poor. So without stating anything more, let me run the video which was made by K3 channel, which is a very small local privatized channel. The subtitles, I tried utmost justification to convert the subtitles. The video is in Urdu, so read the subtitles, pray for them, and also spread this video so that some major human rights activist organization could help them to deliver some justice to them. बहुत ही अफसोसनाक खबर नाज़रीन, हमारी मसीही बेटी के साथ ज्यादती हुई है और अभी तक कोई इंसाफ नहीं। मैं सबसे पहले आपको बेटी की मां से मिलवाऊंगा जिस वक्त बहुत परेशान है। जी बहना, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं मीडिया से यही कहना चाहूंगी, थोड़ा ऊंची बोले बहनों। मीडिया से यही कहना चाहूंगी कि अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले कोई कुछ भी नहीं कह रहे अभी तक। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की 8 साल एज, 8 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में। 3 क्लास में। इस वक्त बच्ची की तबीयत कैसी है? खराब है? हाँ जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं परवेज़ अनवर चैनल K3 से, बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो मैंने देखा बहुत परेशानी है। न्यूज़ हर बंदा ले रहा है, हर बंदा अपने अपने चैनल पर चला रहा है, लेकिन मेरी तमाम उन पेरेंट्स से, तमाम मसीह कौम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मसीही फैमिली के साथ खड़े हों और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता आप इनकी आवाज़ बने। मैं अपनी मेरी एक और बहन है जो कुछ बात करना चाह रही, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। जी बहन, सलाम है आपको। आप कुछ बताना पसंद करेंगे इस केस के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, आज हमें किसी थाने में बुलाया जा रहा है, 6 बजे आए, 5 बजे आए, कभी कोई मीडिया वाला आता है, कभी कोई मीडिया वाला आता है, इंटरव्यू दे, कभी बच्ची को यहाँ पे लेके जाए, कभी वहाँ पे लेके जाए। ये वो सानिया मत समझे कि ये 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे ही हमें जलील करेंगे और इसके बाद गवर्नमेंट आएगी और घरों में आके पैसा देके चली जाएगी। ये सानिया वो है कि इसके लिए हम अपनी आवाज उठाएंगे। पुलिस क्या करेगी? अभी पुलिस पैसे खा रही है, 400, 500, 4000 बंदा उठा के लेके जाए, ले जाए। हमें इंसाफ चाहिए और पूरे स्कूल का मेल जितने हैं उनका DNA रिपोर्ट चाहिए। जो भी होगा उसे मुजरिम को सामने लाया जाए और इसमें टीचर्स इन्वॉल्व है, टीचर्स को भी सामने लाया जाए। और हम इस बात को सुबह 5 बजे तक हमें इसकी रिपोर्ट ना मिली तो हम मेन फिरोजपुर रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे। इसके बाद जो होगा वो हम जाने और पुलिस जाने और गवर्नमेंट जाने कि क्या होता है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सब मसीही बहन भाई हमारे साथ शामिल हो और मैं सारे मसीही बहन भाइयों से मेरी ये इल्तिजा है कि आपके घरों में भी आपकी बेटियां, आपकी माएं और बहनें हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी बेटियां अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकती। और टीचर्स जो है इनके लिए हम ये छोड़ते हैं कि ये दूसरे पेरेंट्स हैं। अगर टीचर इसी तरह हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती करवाएंगी और हमें क्या पता कि बिजनेस कर रही हो, बैरून मुल्क वीडियोस बना रही हो, बना के भेज रही हो और अपने बिजनेस ब्लैक मार्केटिंग कर रही हो। हम नहीं इन पे बिलीव करते। हमें असली मुजरिम चाहिए और उस मुजरिम को सबके सामने लाना होगा। हमारी इस मीडिया से भी दरख्वास्त है और गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम सुबह 5 बजे रोड ब्लॉक करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं बेटी के वाले साहब। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। स्कूल का क्या नाम है? संजय नगर। इस हादसे को कितनी देर हो गई है? 22 तारीख का ये वाक़या है और अभी तक ना हमारी पुलिस बात सुन रही है जी। और ना स्कूल वाले ऊपर से उल्टी धमकी हम लोगों को दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं आपको? जी, थ्रेट कर रहे हैं। और पुलिस वाले कह रहे हैं पैसा लेके बात जो रफा दफा कर दें। ये पुलिस वाले आपको कह रहे जी, हैं? ये पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोगों को। ठीक हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं राणा बरनाबास अयूब साहब। आए हम उनसे इस केस की मजीद डिटेल लेते हैं और इस केस के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं। जी सर। मसीह में सबको सलाम। इस केस का जो मेन सारा जो आता है, संजय नगर का ये वाकया है, संजय नगर स्कूल का ये वाकया है। तीसरी क्लास की ये बच्ची है। इसका जो मेन जो यहाँ पे और भी हमने इलाका से जो सारी खबरें सुनी है ये है कि संजय नगर जो स्कूल है, बेसिकली ये वाकयात वहां पे पहले भी होते हैं और ये जो 2 टीचर्स हैं ये उस सारे वाकया को जो है वो क्लोज करती हैं पैसे दे के। और ये जो है कोई इस तरह का भी स्कैम सुनने में आ रहा है कि ये जो है फिर वीडियोस जो है वो लीक होती हैं और वीडियोस जो है वो आगे फरोख्त की जाती हैं। ये सारे के सारे वाकया को जो है वो पूरा एक ये तरीके से चला रहे हैं। ये बच्ची जो है ये उसे भी इस तरह ही उन्होंने थ्रेट किया कि बेटा अपने घर पे नहीं बताना। ये तीसरी क्लास की बच्ची है और जिस बच्चे के साथ उसका करते हैं कि जिस बच्चे ने उसका रेप किया वो भी एक छोटा सा है, जबकि हाइमन रैप्चर्ड है। ये मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर डॉक्टर ने वाज़ेह अपनी जो है इसमें अपनी ओपिनियन दी है कि हाइमन रैप्चर्ड, और उसमें उसने लिखा है कि जो है वो बच्चा नहीं हो सकता। जो उसने भी हाइमन रैप्चर्ड की है ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। और हाइमन जो है वो ये जो मेल बड़ा आदमी है या वो प्रिंसिपल है या माली है, ये टीचर्स को पता है, टीचर्स बेहतर जानती हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी संजय नगर स्कूल में ये सारे वाकयात हो चुके हुए हैं और उन्हें बड़ी जो है पैसे ले लेके दबाया गया है। जिस तरह के अभी इन्हें भी कहा जा रहा है कि इस वाकये को दबा दें।
اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی ڈی این اے کی رپورٹ کے لیے جو ہے وہ سیمپل جا چکا ہوا ہے، اور جیسے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد جتنے سنجے نگر میں جتنے امپلائیز ہیں یا جن کے اوپر ٹیچرز کا، جو ٹیچرز کہتی ہیں کہ ایک 5-7 سال کا بچہ ہے اس نے ریپ کیا ہے، اس کے یا واٹ ایور جو بھی ہیں ان سب کو شامل تفتیش کر کے ان کے سیمپلز لیے جائیں گے، اور اس کے بعد ملزم جو ہیں وہ بہائنڈ دی بار ہوں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ایک دفعہ پھر سے تمام ویور سے میری K3 چینل سے درخواست ہے کہ اس غمزدہ فیملیز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج اگر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہو سکتی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہ ان کی نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور یہ پوری مسیح قوم کی بیٹی ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تو لہٰذا اس فیملی کے لیے دعا کریں، اور اس تمام مسیح قوم سے، اوورسیز پاکستانی سے میری اپیل ہے کہ اس فیملیز کے ساتھ کھڑے اور ان کو انصاف دلوایا جائے۔ یہ ٹیچر جو ہیں ہم نے سارا اس علاقے سے پتہ کروایا ہے، یہ ٹیچر جو اس کیس میں جو انوالو ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ تو میری آپ سب سے ایک دفعہ پھر سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور ان کو اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو آل۔